केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश को G20 की बैठक का नेतृत्व करने पर गर्व है। होटल ताज कृष्णा में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि आज का युवा नौकरी का इंतजार करने के बजाय रोजगार पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 85,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश को G20 की बैठक का नेतृत्व करने पर गर्व है। होटल ताज कृष्णा में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि आज का युवा नौकरी का इंतजार करने के बजाय रोजगार पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 85,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। We believe startup will drive India's GDP growth in the next 20 years. India has a potential to emerge as the third largest economy, and innovation will be one of our levers. Startup will play a key role in leveraging the 4 Ds that India is offering: a vibrant democracy, development for all with a सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. This is our Prime Minister mantra. Third one, digital public infrastructure such as a Atmanirbhar and Aadhaar, UPI that we build at a population scale. Other one is decarbonization, opportunities in green hydrogen and renewable energy. India is a poised G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हैदराबाद में ताज कृष्णा होटल में हुई और G20 स्टार्टअप सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों, 9 देशों के विशेष आमंत्रियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप संगठनों ने भाग लिया है। G20 सम्मेलन की केंद्रीय प्रतिनिधि अमिताभ कांत ने कहा है कि दुनिया को डिजिटलीकरण की जरूरत है। उनकी वजह प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा। इंटरनल ट्रेड एंड पॉलिसी and Shruti is the joint secretary there, and Mr. Ashish Sinha, who's joint secretary in the G20 Secretariat of the Ministry of External Affairs. So we are truly delighted that all of you are here because this is a very important meeting of G20. Startup 20 is a new engagement group which has been constituted during the G20 movement. G20 now has 12 engagement groups, one of which is India's contribution to the G20 movement, which is the Startup 20. Now, Startup 20 as an engagement group has been constituted because of India's belief and the Prime Minister's commitment that the world needs more digitization, it needs more technological leapfrogging, it needs to make a quantum jump because the world is going through a recessionary phase. 1/3 of the world is facing recession, 70 countries in the world are facing a global debt crisis. Whenever there has been a crisis like this, new technologies, new disruptions have accelerated the pace of growth. And our belief is that Startup 20 will play a very leading and a key role in drafting out new policies and driving innovation worldwide. G20 is very important because G20 countries comprise of 19 countries plus Europe. Actually, that makes it 43 countries in all, and entire Europe comes in. They account for about 85% of the global GDP. They account for about 90% of the patents. They account
for 78% of the global trade, and they account for 2/3 of the global population. G20 is important because in the past, whenever there was a crisis, the G20 was able to take several measures to accelerate the pace of growth. It's a group for economic growth and progress. India took over the presidency from Indonesia, and this is the first time that 4 developing countries, one after another, Indonesia, India, Brazil, South Africa, will hold the track meetings hereafter. This was the inception meeting. There will be 3 track meetings, one in Sikkim, one in Andaman and Nicobar, and one in Bangalore. And then there will be a summit meeting in Gurgaon. So this is the overall plan, and hopefully we'll be able to come out with something which will be able to create a framework for driving the global ecosystem to find out solutions for the global problems. डीजीपी कार्यालय के घेराव में भाजयुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा है कि क्या उचित मांगों के लिए आंदोलन करने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा और कहा है कि केसीआर सरकार के जाने का समय आ गया है। वे नाराज थे कि पुलिस ने उन लोगों के साथ व्यवहार किया जिन्होंने एसआई और कांस्टेबल उम्मीदवारों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस बीच पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रकाश का आईसीयू में इलाज चल रहा है। जब करीमनगर के दौरे पर आए बंडी संजय के मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने फोन पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है और बंडी ने कहा है कि केसीआर उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। भले परीक्षाएं ठीक से आयोजित न हो, उन्होंने कहा है कि केसीआर बेरोजगारी से प्रभावित होगी। एमएलसी कविता ने मेले अभिनेता शरद कुमार देश के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की है। शरद कुमार ने कविता से बीआरएस पार्टी के उद्देश्य, इरादों से और एजेंडे के बारे में पूछा है। मालूम हो कि तेलंगाना के सीएम केसीआर बीआरएस पार्टी को देश भर में ले जा रही है। इसी क्रम में दूसरे राज्यों से कई नेता और प्रमुख लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि शरद कुमार भी इसी पृष्ठभूमि में कविता से मिले थे, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। नए सचिवालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले महीने की 17 तारीख को सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सचिवालय खोला जाएगा। सीएम जिन्होंने हाल ही में सचिवालय का निरीक्षण किया है, ये इंजीनियरिंग अधिकारियों और मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि काम जल्दी पूरा हो। हाल ही में जारी सचिवालय के निर्माण कार्य में ड्रोन विजुअल प्रभावशाली है। तेलंगाना की महिमा को दर्शाने के लिए एक प्रतिष्ठित भवन के रूप में एक नए सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। नया सचिवालय 28 एकड़ में 265 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। कुल निर्माण क्षेत्र 10,51,676 वर्ग फीट है। कुल 7 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल 14 फीट ऊंची है। छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री का कक्ष और भूतल पर स्टोर रूम और स्टाफ रूम है। भवन के ऊपर 2 गुंबदों पर 18 फुट ऊंची राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित हैं। इमारत के हर तरफ 2 मुख्य गुंबद हैं। 34 छोटे गुंबद स्थापित किए गए। सचिवालय के लिए कुल 4 गेट बनाए गए हैं और नए सचिवालय के हाल ही में जानी ड्रोन विजुअल बहुत प्रभावशाली है। चेन्नई जल बोर्ड के अधिकारियों ने प्रशंसा की है कि हैदराबाद शहर के निवासियों को जल बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उत्कृष्ट है। जल बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं ताजा पानी की आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन विधियां और प्रौद्योगिकी उपयोग और राजस्व मुद्दों की अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु में 3 अधिकारियों की एक टीम हैदराबाद आई थी। इनमें राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मरुंगनंदम और चेन्नई जल बोर्ड के एमडी किर्लोश कुमार और मुख्य अभियंता रामास्वामी शामिल हैं। खैरताबाद स्थित प्रधान कार्यालय में एमडी दान किशोर ने उनका स्वागत किया है और एमडी दान किशोर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जल मंडली द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और तमिलनाडु टीम में किए गए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया है। इस मौके पर टीम के सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया गया है। हैदराबाद के अलावा पेयजल, सीवेज जल उपचार प्रक्रिया, एसटीपी का निर्माण, आधुनिक तकनीक, उपकरण, जेटिंग मशीन और सीवर क्रैक मशीन आदि का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही आईटी विभाग में लाए गए जल मंडली द्वारा बनाए गए डिजिटल मॉनिटरिंग और मैनुअल मेंटेनेंस सिस्टम, सेफ्टी प्रोटोकॉल टीम,
ऐप के बारे में बताया गया है। श्रमिकों के सुरक्षा उपायों के तहत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अपनाए गए तरीके, काम के दौरान श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले उपकरण और बीमा सुविधा आदि। शहर के कोटी सीबीआई कार्यालय में सांसद अविनाश रेड्डी की जांच खत्म हो चुकी है और वाईएस विवेका हत्याकांड में सीबीआई अधिकारियों ने अविनाश रेड्डी से पूछताछ की है। सांसद अविनाश रेड्डी ने 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है और ऐसा लगता है कि दस्तावेजी के बयान के आधार पर अविनाश रेड्डी से पूछताछ की गई थी। अविनाश रेड्डी ने कहा है कि उन्हें जो भी तथ्य पता थे उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को बता दिए। अविनाश रेड्डी ने बताया कि उन्होंने जांच की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए राजी नहीं हुए हैं। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों से पारदर्शी तरीके से जांच करने को कहा है। अविनाश ने कहा है कि उन्होंने सीबीआई अधिकारियों के संदेह को दूर किया। अविनाश रेड्डी ने समझाया कि उन्होंने कहा है कि वह फिर से सुनवाई में शामिल होने आएगी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। निजामाबाद का दौरा करने वाले मंत्री केटीआर ने जल्दी चुनाव करने के अप्रत्यक्ष संकेत दिए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि यदि सांसद को भंग कर दिया जाता है और समय से पहले चुनाव बुलाए जाते हैं तो वे समय से पहले चुनाव के लिए भी तैयार हैं। केंद्र की सौतेली मां प्यार दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि पुनर्विभाजन अधिनियम के एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया गया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। निजामाबाद का दौरा करने वाले मंत्री केटीआर ने जल्दी चुनाव करने के अप्रत्यक्ष संकेत दिए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि यदि सांसद को भंग कर दिया जाता है और समय से पहले चुनाव बुलाए जाते हैं तो वे समय से पहले चुनाव के लिए भी तैयार हैं। केंद्र की सौतेली मां प्यार दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि पुनर्विभाजन अधिनियम के एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया गया। बीसी पॉलिटिकल जेएसी ने एमएलसी कौशिक रेड्डी के खिलाफ मानवाधिकार समूह में शिकायत दर्ज कराई है और बीसी पॉलिटिकल जेएसी के अध्यक्ष रचला योगेंद्र गौड़ ने एचआरसी से डीजीपी की कौशिक रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने को कहा है। बीसी पॉलिटिकल जेएसी ने एमएलसी कौशिक रेड्डी के खिलाफ मानवाधिकार समूह में शिकायत दर्ज कराई है और बीसी पॉलिटिकल जेएसी के अध्यक्ष रचला योगेंद्र गौड़ ने एचआरसी से डीजीपी की कौशिक रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने को कहा है। तेलंगाना आरटीसी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कार्गो सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से इसने कार्गो सेवाओं को ग्राहकों के करीब लाने के लिए एएम से पीएम, पीएम से एएम के नाम की लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू की है। तो एएम से पीएम, पीएम से एएम क्या है? आरटीसी द्वारा लाई गई सेवाएं क्या है? तेलंगाना आरटीसी कार्गो सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और आरटीसी के एमडी सज्जनर ने हर ग्राहक को तेज और आसान कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए एएम से पीएम, पीएम से एएम नाम से लॉजिस्टिक कार्गो सेवाएं शुरू की है। पार्सल को 374 एजेंटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। एमडी ने कहा है कि एक नई सेवा उपलब्ध कराई गई है ताकि अगर ग्राहक दोपहर 12 बजे पार्सल बुक करता है तो पार्सल रात 9 बजे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक सेवाओं में 1 किलो पार्सल का सर्विस चार्ज भी कम होगा और पार्सल के साथ आरटीसी सज्जनार बैत शुद्ध जीवा पानी की बोतलें भी बाजार में लाई हैं। जून 2022 में आरटीसी ने यात्री सामान और पार्सल को ले जाने के लिए कार्गो सेवा शुरू की। आरटीसी के एक अधिकारी ने कहा है कि लॉजिस्टिक के नाम पर कार्गो सेवाएं शुरू की गई हैं क्योंकि कार्गो सेवाएं फिलहाल अच्छे परिणाम दे रही हैं, जबकि वर्तमान में 192 रसद वाहन उपलब्ध हैं। आरटीसी अधिकारियों ने कहा है कि 10 टन बंद वाहन और 10 टन खुले वाहन हैं। आरटीसी प्रबंधक हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और इस मौके पर कई वाहनों पर केस दर्ज किया गया है और चालान काटे गए। पुलिस ने बताया कि ट्रिपल राइडिंग के 24,658 और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 1,30,311 मामले दर्ज किए गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 3,892 आरटीसी बसों और 5,806 भारी वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 15 सितंबर से शुरू हुए ऑपरेशन रोप के तहत फ्री लेफ्ट ब्लॉकिंग के
64 स्टॉप लाइन उल्लंघन के 2,01,377 मामले दर्ज किए गए हैं और उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाली 200 दुकानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फुटपाथ एंड क्रॉच करने वाले विभिन्न संगठनों के खिलाफ 12,946 मामले दर्ज किए गए हैं और इसी तरह गलत तरीके से पार्क किए गए 53,424 वाहनों के खिलाफ टोइंग के मामले दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने उस मामले में सैयद अब्दुल कादरी को रिहा करने के आदेश दिया है जिसमें पुलिस ने नफरत फैलाने के आरोप में पीडी एक्ट दर्ज किया था। उन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने की कई शर्तें लगाई गई हैं। हैदराबाद के मलकपेट में सैयद अब्दुल कादरी गिरफ्तार किए गए हैं और रिहा किए गए। राजा सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की खबर है। पुलिस ने उसके खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज कर हिरासत में रखा है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में उसकी मां कंचला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक बंडी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अभिषेक रेड्डी और जस्टिस जुवाड़ी श्रीदेवी की बेंच ने जांच अपने हाथ में ली है। खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद रिट याचिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने केवल 2 मामलों में आधार पर पीडी एक्ट दर्ज करने पर चूक की है। पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में रखने का जारी आदेश निरस्त किया गया है। हैदराबाद में हमेशा व्यस्त रहने वाला हिमायत नगर रोड अचानक धराशायी हो गया है। गली नंबर 5 में सड़क 10 फीट तक धंस चुकी है और 5 से गुजर रहा टिप्पर अचानक गड्ढे में गिर गया। हादसे में टिप्पर चालक व 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया है। सड़क धंसने के कारण भारी जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक साफ किया है। सड़क किनारे पानी भर जाने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अभिनेता नंदामोरी तारक रत्न का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया है और जिन्हें 27 जनवरी को बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। स्वास्थ्य बुलेटिन नारायण हृदयालय और अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जारी किया गया था जो अभिनेता का इलाज कर रही है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार तारक रत्न का स्वास्थ्य बहुत नाजुक है और वह अधिकतम सपोर्ट पर है। तारक रत्न की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 27 जनवरी को पहले कुप्पन का दौरा करने वाले डॉक्टर की एनएच टीम ने पाया है कि उन्हें इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप, आईएबीपी और वासोएक्टिव सपोर्ट पर बैलून एंजियोप्लास्टिक के साथ एटेरियर वॉल मियोकार्डियल इन्फेक्शन, वायोएक्टिव सपोर्ट पर बैलून एंजियोप्लास्टिक के साथ एटेरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। उन्हें 28 जनवरी की रात करीब 1 बजे सड़क मार्ग से बेंगलुरु के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तारक रत्न का आगे उच्च स्तर के डायग्नोस्टिक द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिससे पता चला है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद कार्डियोजेनिक शॉक के कारण उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। वर्तमान में तारक रत्न बहुत अनुशासनात्मक और क्लिनिकल टीम की देखरेख में है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिफायर और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। अस्पताल ने तारक रत्न को गोपनीयता और निर्बाध उपचार प्रदान करने के लिए आगंतुकों से अपील की है कि वे न आए।